मैं शुरू करूं, मैं इंट्रोड्यूस कर कि वेरियस सिख ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड जो आज यहाँ आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उसमें हमारे जो गुरदीप सिंह जी हैं, ही प्रबंधक कमेटी श्रीनगर, एंड इस तरफ बिक्रम सिंह IGS के, और हमारे पीछे देविंदर सिंह जी हैं जनरल सेक्रेटरी गुरमत टकसाल के, इंदुमीत सिंह जी जो सिख लीडर हमारे एक सीनियर हैं, एंड गुरदीप सिंह जॉइंट सेक्रेटरी हैं सिख यूथ फेडरेशन के यहाँ पर। बिकॉज हम सब लोगों का एक ही सोच है और एक भाईचारा जो जम्मू कश्मीर में है, हम उसको हमेशा कायम रखने के लिए एक ही आवाज़ में हमेशा यहाँ सोसाइटी के साथ खड़े होते हैं। पर आज की जो बात है वो मैं एक प्रेस रिलीज़ जो है वो पढ़ूंगा, वो है टोटली related with the Sikh community, क्योंकि we had been ignored for the last 30-40 years in Jammu and Kashmir, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने कल परसों बहुत हाई स्पीच दी है जिसमें कहा है कि सिखों का रोल इंडिया की हिस्ट्री में बहुत अहम रहा है और बहुत तारीफ़ की है, लेकिन वो तारीफ़ सिर्फ तारीफ़ ही है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसी बात होती तो आज हम आपसे मुखातब नहीं होते अपनी शिकायतें लेकर। On behalf of all party Sikh Coordination Committee, I welcome you all to the press conference. In today's press conference, we are going to touch important issues confronting Sikh community in Jammu and Kashmir, more so during past 30 years of turmoil. Friends, all governments of Jammu and Kashmir in the past have deliberately ignored the basic issues of Sikh community while taking refuge under the turmoil in the erstwhile state. The issues have piled up due to non-resolution, and we fail to understand the measuring rod used by the people at helm to measure or understand the problems of Sikhs of Jammu and Kashmir. We have been neglected and discriminated all along, even in the new setup of Union Territory. The government is not conducting elections of Gurdwara Prabandhak Committee, even though they are due to be conducted under the J&K Gurdwara Endowment Act 1973 by Financial Commissioner Revenue. Although DDC elections and polls of local bodies have been held over the past 3 years or so, no stop is being taken to hold election of Gurdwara Prabandhak Committee. Since elections have not been held, mismanagement and financial irregularities have come up in many districts, with the same leading to litigation by delaying election of Gurdwara Prabandhak Committee. Sikh community in Jammu and Kashmir feel bad about the government conduct towards them. The APSEC demand the government should come forward and help the community in consolidating the property of the community attached with various gurdwaras. Many vested interests have developed among influential people from within the community and outside community to grab the property of Sikh community in both the province of Jammu and Kashmir. Innocent members of the community are being exploited by influential one, while wielding influence to that their crimes are shielded and they are not exposed. The government should ask all the deputy commissioners of Jammu and Kashmir to take stock of these nefarious design to safeguard the property of Sikh community attached with various gurdwaras. Despite repeated promises, the Sikh community is not given the status of minority in Jammu and Kashmir. We at APSEC submitted memorandum time and again and also met successive chief ministers, Union Home Minister and head of the country, including late Pranab Mukherjee, the then President of India, and Dr. Manmohan Singh, ex-Prime Minister of India. The incumbent Prime Minister, Narendra Modi, has been praising the historical contribution of Sikhs in the country, but at the same time he never gave an opportunity of Sikhs of Jammu and Kashmir to understand the issues faced by the Sikh minority in Jammu and Kashmir. Sikhs are openly discriminated
in various government orders and packages, while as other minorities are getting special, exclusive and secret packages of jobs for their youth. It seems that the Prime Minister office is ignorant of such attitude of government. I impress upon the government to shed away the irresponsible behavior of treating the Sikh minority as second-class citizens. In meeting with APSCC Jammu and Kashmir Lieutenant Governor, Manoj Sinha realized the discrimination being meted out with the Sikh community in the past and assured with commitment to sort out the Punjabi language issue that arose after the abrogation of Article 370. The LG acknowledged that the unemployment youth of Sikh minority have suffered and they did not get their share in the last packages announced for non-migrant minorities, with only Kashmiri Pandits getting the benefit under the package and other minorities including Hindus and Sikhs being left out of the same. The agencies running the affairs of Jammu and Kashmir don't want to treat every citizen equally. At the same time, they seem to be hell-bent upon to carry out discrimination with Sikhs. The APSCC will continue to raise the voice of community at all forums, and no stone will be left unturned in ensuring that justice is done to the Sikhs of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Despite our meeting with the Delimitation Commission, headed by Justice retired Ranjana Desai, no reservation whatsoever has been earmarked for the Sikhs, even though we demanded for the same in the meeting, and it was also mentioned in the memorandum submitted to the Commission. The cold shoulder attitude of the Commission means that basic rights in Jammu and Kashmir will not be extended to the Sikh minority in the forthcoming delimitation of assembly segment. From this forum, we reiterate our demand of reservation of 4 seats for Sikhs in Jammu and Kashmir Assembly. Thank you. Mr. Rana, you spoke about the Delimitation Commission. You met with them and you said you had expressed your reservations for the community, but then there was nothing mentioned in the proposal, which is not into the public domain yet. So what is your take over the recommendations? Like, you know, the major political parties are unanimously in one voice rejected, other than the BJP, they have supported it. So what is the take of AP and all parties in coordination committee? Dekhi sahab, already I have conveyed at my so many meet with the media people who came personally to me. I conveyed concern of the Sikh minority that they should give us reservation, but nothing should be done. देखिए दो चीजें हैं, बेसिक प्रेम्बल्स हैं जो हमारे इस डिलिमिटेशन कमीशन के हैं. एक तो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एन एरिया, सेकंड इज गिव रिप्रेजेंटेशन टू द अनरिप्रेजेंटेड पीपल. दैट मीन अगर माइनॉरिटीज के लोग अगर कहीं हैं, जैसे शिया है या पहाड़ी है, गुजर्स है, पंडित है, हिंदू है या सिख है, अगर ये किसी जगह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते हैं पूरी स्टेट में, then they have to give reservation to this people, those who cannot represent any constituency. ये basic preambles हैं. But अगर इसको politically motivate करके बनाया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अफजल बेग साहब के वक्त में जब जस्टिस जलालुद्दीन थे, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूंसियों का इस तरह से तोड़ मोड़ किया गया जिसमें कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर नहीं था, और आज वही उसी फैक्टर को हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या सरकार है वो ये कर रही है कि कहाँ वोट बैंक है. दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डीलिमिटेशन. दे शुड हैव अनाउंस्ड फर्स्ट कि साहब हम डीलिमिटेशन करने जा रहे हैं, फिर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती, पर वो बात नहीं हुई. इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सिख माइनॉरिटी जिनकी से नहीं है, हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. अगर वो हमें इसमें रिजर्वेशन नहीं देंगे तो उसके लिए नतीजे जो हैं बहुत बुरे निकलेंगे. सर एक छोटा सा सवाल है. जबकि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और अक्टूबर में आपका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें आप कहते हैं कि हम आर्टिकल को वेलकम करते हैं और इसके बाद हमारे यहाँ जॉब्स बढ़ेंगे, माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर रसूख बढ़ेगा, हर एक चीज़. क्या वो हुआ फिर? नहीं, मैं अक्टूबर 19 में आप स्टेटमेंट आता है. आपकी बात सही है. उसमें जिस तरह से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको बोलते हैं पपेट्स पीपल, वो हर कम्युनिटी में, चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, सब जगह. वो APSCC ने कभी नहीं कहा. हम लोगों ने हमेशा, आई एम द फर्स्ट पर्सन
who filed in Supreme Court to defend Article 370 and 35A. A person, कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने, जो सरकार के बड़े करीब हैं, उन लोगों ने ऐसी बात की है, and we condemn that. इंडिया टुडे ने आपको कोट किया है, आपका नाम है वहाँ पर? No, not mine. It is some businessman. It is some other businessman by name Raina. Not mine. No, not mine. मेरा तो बड़ा ओपन है साहब. मैं तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ. मैं आज भी लड़ रहा हूँ कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में रिस्टोर किया जाए, बिकॉज द ओनली वे लेफ्ट विद द टू रिस्टोर आर्टिकल 370 इज द सुप्रीम कोर्ट. मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, मैं कैसे वो दूंगा? आई हैव नॉट सीन, बट दैट रैना इज अनदर रैना. जो मैंने आपसे कहा, जिन लोगों की ऐसी सोच है, जो गलत सोच है, हर कम्युनिटी में ऐसे होते हैं, उस पर मेरा कभी नहीं है. मैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को स्टैंड उसके लिए खड़ा हूँ. हमारी सिख कम्युनिटी पूरी उसके लिए खड़ी है. आर्टिकल 370 जाने से सबसे बड़ा नुकसान जो सिख कम्युनिटी को हुआ है वो हमारी पंजाबी जबान, क्योंकि J&K कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, उसमें सेक्शन 134 कैरीड लैंग्वेजेस, रिजर्व लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पंजाबी इंक्लूड थी. लेकिन आर्टिकल 370 जाने से सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसने पंजाबी को बाहर कर दिया. तो सबसे बड़ा नुकसान तो सिखों को हुआ आर्टिकल 370 जाने से. ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ. लेकिन सर अभी आपने एक और बात आई वुड लाइक टू ऐड कि आपने कहा कि लाइक जो अदर माइनॉरिटीज है उनको एक्सक्लूसिव स्पेशल पैकेज और कहीं ना कहीं से सेक्रेट जॉब्स की आपने बात करी. जी. दूसरी साइड में आप प्लीज थोड़ा सा इसको ब्रीफली करेंगे कि कौन सी ऐसी माइनॉरिटीज है जिनको कुछ स्पेशल पैकेज मिले हैं या जिनको कौन से जॉब्स मिले हैं? देखिए, मैं आपसे बताऊं बड़ा क्लियरली, ये कोई बात छुपी गुपी नहीं है. हम तो पहली बार कह रहे हैं कि अगर ये जम्मू कश्मीर जहाँ रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे पंडित है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट है, जो दैट इज नोटिफाइड द 6 माइनॉरिटीज इन इंडिया विच इंक्लूड्स मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बोथ. हिंदू इज पंडित एंड हिंदूज आर नॉट माइनॉरिटीज इन, बट जो कश्मीरी पंडित है, दे हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कश्मीर, जिसके लिए हमेशा कुछ ऐसे पैकेजेस आए. कश्मीर में अगर पैकेजेस आया था नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ के लिए, बच्चों की जॉब के लिए, और मुझे पास वो ऑर्डर है उसका जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था कि 700 पोस्ट वर गिवन टू नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़. नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ इंक्लूडेड हिंदू, सिख एंड कश्मीरी पंडित्स. बट उस ऑर्डर को इन्होंने बाद में अमेंड किया, जो बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर था हमारी जम्मू कश्मीर में. बट किसी ने इंक्वायरी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुनता ही नहीं है. और उन्होंने उसको अमेंड करके उस ऑर्डर को बनाया गया, जिसको 324 ऑर्डर बोलते हैं, कि साहब दिस इज मीन कश्मीरी माइनॉरिटी मीन कश्मीरी पंडित. उसके लिए हम कोर्ट में भी गए, लेकिन यहाँ कहीं चलती भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं चलती यहाँ कश्मीर में. तो इसलिए बात ही बड़ी, हम बात बड़ी सफाई और क्लैरिटी से कहेंगे. हम हमेशा यहाँ पार्ट एंड पार्सल है इस कश्मीर सोसाइटी के, और जब भी बात कोई करते हैं ठोके करते हैं. आज हमारे साथ सिखों के साथ एक किस्म का एक बी क्लास सिटीजन का बिहेवियर किया जा रहा है. सीक्रेट पैकेज दिए जा रहे हैं लोगों को. जो लोग यहाँ रहते थे, दूसरी कौमों के लोग, उनको अंदर से पैकेज दिए गए. इवन माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ एडवर्टीजमेंट दी, वो यहाँ पेपर, नेशनल पेपर ज़्यादा लोगों ने मुताला नहीं किया, मेरी मीडिया ने, बट उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि कश्मीरी पंडित को उसमें जो हमारा नेशनल कमीशन है उसने पैकेज दिया. हाउ कैन दे गिव इट? दिस इज टोटली वायलेशन. लेकिन देश में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है ये. हम लोग जो यहाँ पर हमारा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, गुरुद्वारा इलेक्शंस की, यहाँ उन्होंने डीडीसी का इलेक्शन किया, म्यूनसिपलिटी का इलेक्शंस किया, वहाँ कोई इशू नहीं है. अब सिखों का इलेक्शन आया तो वहाँ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको कुछ इंटरेस्ट है कि साहब इनकी कोई शायद किसी किस्म का कोई होगा, और इलेक्शन ही कर रहे हैं. हमें को 2020 में हमारा इलेक्शन ड्यू था, आज 2 साल ओवर ड्यू हो गया, अनाउंस भी किया. तो यह है कि हमारे साथ हर फील्ड में जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और नेगलेक्ट किया जा रहा है, जो हम खुल के बात हमेशा करते आए हैं आपके साथ.